लंबे समय से नेटफ्लिक्स पर आने वाली डॉक्यूमेंट्री द रोशंस का सभी को बेसब्री से इंतजार था और आज मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां पर नजर आए द रोशंस यानी कि राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन। भाई आज ये तीनों लग रहे हैं बेहद ही कमाल, क्योंकि मौका भी खास है जहां पर दो भाई यानी कि राजेश और राकेश ऋतिक रोशन के संग नजर आ रहे हैं। भाई इस ट्रेलर में रोशन परिवार की जीवनी को दिखाया गया है कि कैसे इनकी इस इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, किस तरीके से राकेश रोशन के पापा ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया। इसके अलावा यहाँ पर कई और लोग इस खास मौके पर शामिल हुए हैं, जैसे कि मोनिका शेरगिल, शशि रंजन, आकांक्षा रंजन और कई और करीबी दोस्त जो बने इस खास मौके के खास मेहमान। किस तरीके से उन्होंने गाने की दुनिया में एक अलग पहचान दी। फिर उसके बाद एरा आया राकेश रोशन और राजेश रोशन का, जहाँ पर राकेश रोशन ने अपनी एक्टिंग और अपने डायरेक्शन से इंडस्ट्री में तहलका मचाया, तो वहीं राजेश रोशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री को चुना। और फिर बारी आई ऋतिक रोशन की, जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी कहो ना प्यार है से सभी के दिलों में जगह बनाई। तो आइए मुलाकात करते हैं द रोशंस यानी कि राकेश रोशन, राजेश रोशन और ऋतिक रोशन से, जो आज शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। Hello, everyone. Happy New Year to all of you. Uh, Thank you, Monica. Thank you, Netflix, for giving our journey this platform. Thank you. When I saw this documentary, I was absolutely amazed. It's been directed so beautifully. Thank you. Geeta, your work is phenomenal. Thank you so much. Sorry. Now to answer your question, I never met my grandfather. I wonder if I would somehow magically get a chance, what would be the conversation I would have with him. After seeing the documentary, I would actually like to ask him about his childhood, about the things he went through. I wonder what he would ask me. I think he may ask me if I'm happy. I would thank him because I often wonder, what was that drive that I had when I was doing my first film? What was it? Where did it come from? And I mean, the simplest answer is that it was already there. It was in my cells. It was something that passed on. It's like they say, intelligence passes on in your cells. That's what genetic evolution is. You pass on and you get better. So yeah, when my father said that he wants to make this documentary, first I felt embarrassed. I don't like attention. And then I realized, no, this is not about me. It's not about me at all. This is about history, and history is important. It is the history of my ancestors, my parents, my grandfather, my chacha, that history that was in my cells that gave me that drive. There are stories that made me so inspired. It inspired me so much that I was unstoppable. It was nothing else but that. And the true celebration of this documentary would be that if it is able to inspire others, other students of cinema, human beings all over the world, if it does that, then that would be the celebration. I think we took his name ahead.
and that is what he would have loved, and we did that. जो लेगेसी आप लोगों ने फॉरवर्ड की है और इतनी बेहतरीन तरीके से I won't say legacy, but I'll say that we were inspired by his work, his contribution to the industry, and we gave our work as a contribution for so many years. And so- I, my brother Rajesh, and then Ritik. So we all contributed. I think I answered that already. I didn't like the idea. I was like, "Arey yaar, talking about me and talking about us." But as I said, I'll repeat it because you've asked me the question again. When I realized that this is about history and it is going to, be important for people to know other people's journeys. When you're aspiring and you're working against barriers in your life and you need inspiration, it is other people's stories that comes to the rescue. And if my grandfather's story, my father's story, my chacha's story, our entire arc can inspire, then that would be worth it. It would be worth it. So I think which is why I agreed to it, which is why I understood it. And now when I see it, I'm very happy with it. कि हम और शशि बैठे हुए थे फार्म हाउस पे, तो शशि ने कहा कि क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाए रोशन जी के ऊपर. तो मैं बोला हाँ, ये तो अच्छी बात है. एंड आई टोल्ड हिम विल थिंक ओवर इट. तो नेक्स्ट डे जब मैं शशि से मिला नेक्स्ट टाइम, तो मैंने बोला शशि, व्हाट यू सेड वाज, आई थॉट ओवर इट एंड वी शुड मेक इट, बट आई थिंक can we make on the Roshans, because there are very few families in this industry where 3 generations have contributed. So it's my father, then my generation, his generation, then Ritik's generation. So it will be the Roshans' contribution to the industry. And he immediately said, yes, let's go ahead, and if this happens, it'll be very good. So then I spoke with Ritik and I spoke with Rajesh, and that's how we started this. रोशन फैमिली में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग ही सोचता हूँ. जी मैंने गुड्डू से बहुत कहा, यार डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ यार. क्यों बना रहे हो? बोलता है क्यों. और क्यों मैं यूँ बोलता था कि मैं बहुत शाई पर्सन हूँ. आई डोंट वांट टू शो माय लाइफ, विच इज़ अ वेरी सिंपल लाइफ. रोड जो था मेरा इतना कुछ आसान नहीं था, तो मैं सब बातें क्यों खोल के बताऊँ लोगों को. बट ही जस्ट कॉट होल्ड ऑफ माई कॉलर एंड सेड सिट डाउन, लेट्स स्टार्ट द डॉक्यूमेंट्री नाउ. दैट वाज इट. तो वहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला और फिर And also I felt that there are so many stalwarts left out. So many of them जिनकी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी. मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ. Thanks to Netflix and Monica जी के they have been the platform for us, the backing for all of the Roshans. My son's compositions with him. वाओ I think that has come out of literally nothing. And as I said, it's perhaps something in the genes, perhaps something that is a gift from him. तभी उन्होंने बनाया था ये गाना, अपना जो वादा किया. और उस ज़माने में मुझे याद है, मैं एस.डी. बर्मन जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, मदन मोहन जी का फ़ैन था. और मैं उनसे कहता था, और उसी दौरान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एंटर हो गए थे, मिलन और दोस्ती. सो दे केम विद a little bongo, congo and all those things. And Shankar Jaikishan was always there with those Western orchestra. So I used to tell my papa, ये कहाँ चलेगा आपका गाना? क्यों बेटा क्यों? आप कुछ bongo नहीं बजाते हैं, कुछ ऐसा कुछ कुछ कमर्शियल एंगल नहीं है पापा. अच्छा तो every song he used to call, कहाँ है राजू, बुलाओ. ऐसे से ये सुन गाना कैसा है. मैं बोला अच्छा गाना है, लेकिन इसमें वेस्टर्न ज़रूर करना.
somehow he used to try to incorporate some western stuff also in his songs जो अभी समझ नहीं आता. पर देखो भाई, आज जमाने गुजर गए, डैडी कब चले गए पता नहीं चला. आज एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का गाना सुनने का दिल करता है, मेरा अपना नहीं, मेरे पापा का गाना. Wow. जो वादा किया हो रहे ना रहे हम हो, मन मन रे तू काहे ना धीर धरे. These are the songs which have remained. अब क्या रह जाता है, अब क्या पैमाना है म्यूजिक का, अब कैसे मापोगे. ये गाना अच्छा था, ये गाना खराब था. उस समय तो शंकर जयकिशन जी के सब गाने अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. लेकिन रोशन जी जीत गए. रोशन जी का म्यूजिक आज भी हर बच्चा भी जानता है, मन रे तू काहे ना धीर धरे. तो ये मैजिक था उनका. और मैंने कुछ कहा था डॉक्यूमेंट्री में जो आप देखेंगे, जो मैं विजुलाइज करता हूँ कभी कभी, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मगर मुझे दिखता है कि रोशन जी हमारे साथ हैं. और डुगू को कैसे मिल रहे हैं, गुड्डू को कैसे मिल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे दिखता है. और जो मैंने थोड़ा जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्री में, जी. टिक गया वही म्यूज़िक था. इसका मेजरमेंट क्या था, म्यूज़िक का मेजरमेंट क्या होता है, यही होता है. अगर मेरा गाना 50 साल के बाद भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब वो अच्छा था भाई, वो उसमें कोई तकरार नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है. He used to call me, Dugu ko bulao. And I used to sit with him, and he used to play me 3 tunes, and he used to say, choose. And sometimes I used to see my choice up on that screen. Wow. It used to be amazing, that feeling. But he used to be a very good learner. You know in what way? Ek line. So he used to come to the music room and hear the song. So it had some Urdu words, some Hindi words, which were, little difficult for him. But he used to ask very nicely, Chacha, इसका क्या मतलब होता है? What does a line mean? That is the learning power he had. अरे भाई बस अब बना रहा हूँ कुछ, ऐसा से कुछ होता नहीं है. बल्कि हर बार जो एक इंटरव्यू होता था उसमें एक नया एक्सपीरियंस होता था, एक नई कुछ दिशा दिखाई देती थी बातें सुनने के बाद. तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाना जो है ना, ये बहुत कठिन काम है. और हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली एज मोनिका सेड कि इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिला कि वो बना सकें, लेकिन बनना चाहिए. ये एक प्रोसेस होता है जो इवॉल्व होता रहता है. आपके जहन में एक बड़ा नज़रिया तो है कि ये कुछ ऐसी जानी चाहिए, लेकिन वो उसमें से क्या क्या निकलेगा ये आपको कभी पता नहीं होता. आप मानेंगे नहीं, मैंने 17 पिक्चरें बनाई हैं. इससे मुश्किल पिक्चर को मैंने कोई नहीं बनाई. इतनी मेहनत लगी है, इतनी डेडिकेशन से. तो बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट्री बनाना. इट्स नॉट इजी थिंग. वो क्या होता है कि आप पिक्चर में आप कहानी लेते हैं, तो आप सुनते हैं, कहानी लेते हैं जिसमें इमोशंस हो, थोड़ा सा ये हो, थोड़ा वो हो. हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे, उसमें कोई कहानी नहीं होती. ये कहानी ये बनाते हैं, गीता ने बनाई है, शशि ने बनाई है, एडिट कर करके. और जब हमने पहली बार देखा पूरा ऑल द 4 सीरीज टुगेदर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में हमारी फैमिली ने इतना कुछ किया है फ्रॉम 77 ईयर्स. ये मेरी फीलिंग थी, इतना कंट्रीब्यूशन. मेरे फादर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था ताजमहल के लिए, जो वादा किया निभाना पड़ेगा. तो जब हम उस फंक्शन में गए थे शर्मोकानंदा हॉल में, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे याद है कि फादर ये खड़े होके उन्होंने ये पोज, ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ निकाली थी. मुझे तो राजेश की शर्ट बहुत पसंद आई. राजू की भी शर्ट कम नहीं है दोस्तों. भाई ये तो सब क्रेडिट जाता है हमारे ड्रेस डिज़ाइनर्स को, जो उस वक्त हमको बना के देते थे, लो हम पहन लेते थे. तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है. उनको क्रेडिट जाता है पूरा. लेकिन सर, यू पुल्ड इट ऑफ सो ब्रिलियंटली. सो आई थिंक this was way too cooler. Too cool to school. Yeah, this I think was a photo session that my dad was doing for one of his films. And पता नहीं कौन सी पिक्चर थी यार, शायद खून भरी मांग. या करेक्ट. Yes. That is the look. क्या बात है, किसने बताया भाई? और मैं, क्या बात है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले.
कैसे पता किया यार? हाँ अच्छा जीनियस है का तू, जीनियस है बंदे. I think this was, you just called me. You called me and said, come, I want to take a picture with you. And I came and I sat with you. And this was that picture. या पर आपने कैसे गेस किया ये खून मेरी मांग? मैंने बोला वो कि उसको बोला मैं. मेरे हाथ में तो मेरा पेट है, क्रोकोडाइल नहीं है. राकेश जी का एक बहुत अच्छा फार्म हाउस है खंडाला के अंदर. ये मुझे वहाँ लेके जाते हैं अक्सर, और शाम को हम बैठते हैं तो गाने वाने गाते हैं, सुनते हैं. और अचानक एक दिन मैं कुछ रोशन साहब के दो गाने मैंने गाए, तो गुडू जी सेड कि अरे यार ये डैडी के गाने बहुत गाता हो तू. मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम थोड़ा था कि मैं आपके फादर से आपसे मिलूँगा. मैं तो बचपन से इनके गाने सुन के गाता रहता हूँ. एंड डिस्कशन हैपन कि हमको कुछ करना चाहिए रोशन साहब के लिए. ही सेड ही वाज, यू नो, ही डाइड वेरी अर्ली अनफॉर्चुनेटली. ही वाज अनसंग हीरो. सो आई सेड यस फॉर श्योर, बट वी मस्ट डू समथिंग. ही सेड क्या करेंगे भाई? सो आई सेड मैं कोई प्रोग्राम बनाता था, मेकिंग ऑफ अ लेजेंड और लिविंग लेजेंड्स. तो मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं रोशन साहब पे. सो आई थिंक यू नो हाउ दिस इज. जैसे हाँ देखते हैं कुछ होगा ऐसा कुछ. वो मेरे जहन में वो अटक गई चीज़. और वो 3-4 दिन के बाद फिर मैंने इनके सामने गई कि गुरु जी वो बनानी चाहिए हमको. मैं तो सोच रहा हूँ बना दूँ. तो बोले कहाँ बनेगी, कहाँ जाएगी, क्या, कौन लेगा इसको? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है ये, लेकिन बनानी चाहिए हमको. और बहरहाल मैंने उस पर जब काम शुरू किया तो गुड्डू जी को लगा अभी थोड़ा सीरियस है ये, अभी ऐसे ही रात भाई बात कही नहीं थी. तो उन्होंने कहा, मुझे एक सुझाव दिया कि शशि, डैड के साथ अगर हम लोग भी उसमें बात करें तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, यू तो आप तो फैमिली हैं तो आप तो होंगे ही होंगे उसमें. लेकिन बातों में ये निकला कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाई नॉट दिस कंप्लीट आर्क. जो जावेद साहब का लास्ट सेंटेंस था कि जो रवायतें और जो चीज़ें वो रोशन साहब छोड़ के गए थे वो आज तक इस फैमिली में चल रही है. और बहुत सही जो मैं डेडिकेशन ऋतिक में देखता हूँ, और जो इन लोगों की ख़ास बात है, जो सबसे यूनिक है, वो ये है कि इन्होंने कभी किसी ने भी, और ये शायद जेनेटिक है, अपने काम की टॉम टॉम नहीं करते, बात ही नहीं करते. आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कितने लोगों ने कहा है कि भाई इनका काम इतना साइलेंटली करते हैं. और सेम वाज विद रोशन साहब. तो ये आर्क जो है ये कंप्लीट ऐसे होती है कि स्टार्ट रोशन साहब से होती है. और आज चूँकि ऋतिक इज़ अ रेनिंग स्टार एक्टर, सो इट बिकेम वेरी फैसिनेटिंग. सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग केम अबाउट. और ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री जो है वो अनलाइक सिनेमा, अपना फिक्शन, कुछ बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड और प्लान नहीं होता है. स्पॉन्टेनिटी बहुत होती है उसमें. Remarkable Shri Roshan Lal Nagrath. He's the grandfather of Hrithik Roshan, as many of you may know, a composer whose music defined an era and left an indelible mark on Bollywood. I'm not someone who will remember many songs, but even I remember from my childhood Roshan Saab's songs, Rahe Na Rahe Hum, Jo Waada Kiya Wo Nibhana Padega, Laga Chunri Mein Daag, and so many more songs like these, melodies like these that are still remembered as timeless classics of Bollywood. Roshan Saab's legacy was carried forward by his sons, Rakesh Roshan, a visionary filmmaker and an actor par excellence, and Rakesh Roshan, whose music has touched the hearts of millions with its timeless melodies. Who doesn't remember Julie? I do, and I still groove to it. And of course, Hrithik Roshan, who burst upon our screens, literally burst upon our screens. It's a debut that everyone remembers, and whose name is synonymous with charisma, with versatility, and unmatched dedication to his craft of performance, of dancing, and his creativity in everything that he does. Hrithik's journey is a testament to the Roshan family's dedication for generations of what they have done with the industry, their unwavering commitment to excellence in entertainment. The Roshans is a story of dreams, determination, and unbreakable bond that they have with this industry. For the first time, we get to hear the untold stories,
straight from the Roshan family themselves. Stories of their trials, their triumphs, and the deep love for cinema that has run through their family, and that is the foundation of their legacy. I'm also really thankful to Shashi Ranjan, who's been a wonderful partner, a great director on this docu-series, and the depth and nuance that he's brought to this project, and shown us a peek into this world, which is very personal, very intimate, very emotional. There are many documentaries on Bollywood, on talent, on creators. I do feel that there is something which is much more emotional here, a very personal look which the family themselves shares. And Shashi, as a director, has been able to bring something out which is unmatched. So I'm really proud to bring this on Netflix. And I really hope you all enjoy this story. It resonates deeply with you. And of course, my absolute favorite that it starts with the music of Sri Roshan Lal Nagrat. It's an absolutely unmissable takeoff for the series, and an episode that I'm sure all of you will have a lump in your throat. And thank you. And I think we should call Shashi on stage to unveil the trailer and say. दोस्तों, सबसे पहले मैं मोनिका शेरगिल और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये जो स्टोरी है रोशन, जिसके बारे में आपने भी सुना, उन्होंने अपने नेटफ्लिक्स के लिए चुना। नेटफ्लिक्स न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि इट्स ए होम फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड वाइड। और शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग था कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलके एक साजिश करती है। तो हमने भी बहुत शिद्दत से चाहा था कि हम जब डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आए, और मुझे आज ये बेहद खुशी है कि हम लोग साथ इस एंडेवर में इकट्ठा हुए हैं। ये कहानी या ऐसी कहानियाँ जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, they are not only a story about the people behind, it also tells the story of Indian cinema. And in our country, unfortunately, there are hardly any audio visual documentation of such stories. आपको हैरानी होगी कि हमारे जितने भी सिनेमा के ग्रेट हैं जिनके ऊपर ये सिनेमा का एडिफिस है, लाइक राइट फ्रॉम के आसिफ टू महबूब टू गुरुदत्त टू राजेश खन्ना टू देवानंद टू दिलीप कुमार टू लता मंगेशकर टू मोहम्मद रफ़ी टू किशोर कुमार, किसी की ज़िंदगी का ऑडियो विजुअल ड्रामा हमारे पास नहीं है। और मैं जब पहली बार मोनिका से मिला तो मैंने उनसे कहा कि इंडियन सिनेमा विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू यू फॉर टेलिंग दिस स्टोरी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक many more stories of such great should come in front of the people, because these are the stories, because they are, आप लोगों ने इन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी जी है, इनके गानों के साथ, इनकी फिल्मों के साथ, इनके अभिनय के साथ। तो मुझे खुशी है कि हम आज उस एक स्टोरी के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी अपनी टीम का, मेरे डीओपी अरविंद का जो आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है, मेरी एडिटर गीता सिंह जिसके साथ हमने करीबन 1 साल जो है गुजारा है इस मटेरियल के साथ, और मेरी एक बहुत छोटी सी टीम ने ये पूरा काम किया, लेकिन बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ हम इस डॉक्यूमेंट्री को बना पाए हैं, और वही जज्बा शायद इसमें दिखाई देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम थैंकफुल टू ऑल द रोशंस। ये जब कहानी शुरू हुई तो जब हम बातें करते थे रिसर्च के ऊपर, सडनली आई रियलाइज दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनका दर्द, वो सब मुझे बहुत पर्सनल सा लगने लगा। और ये जो एक अनोखा अनुभव था मेरे लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा जब लंबे इंटरव्यू होंगे, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो इमोशन, वो एक जज्बा
एक बार ऐसा होता था कि कई बार हम कुछ इमोशनल बात करते थे फैमिली के बारे में, तो उनकी भी आंखों में आंसू होते थे, मेरे भी होते थे, और हम कैमरा रोक देते थे कि चलो 5 मिनट रो लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जब कोलैबोरेशन होता है जिसका बेसिस प्योर इमोशन होता है, तो वो हमेशा कहानी है लोगों के दिलों को छूती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। और वंस अगेन थैंक यू एवरीवन हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू मोनिका, एंड यू कैन अनाउंस फॉर द ट्रेलर नाउ। Shashi, let's. दोस्तों, आवर लेबर ऑफ लव, द रोशंस। That way. Sit that way. Thank you very much. Sir, I think this was fantastic. What I genuinely want to ask you और सबके दिमाग कैसा में- लगा भाई? जेन्युइनली सबके thank you. जहन में एक ही चीज है कि आप क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे 3 दिन लगेंगे बताने में। अच्छा, इतनी सारी कहानियां हैं। Yes, इतना इंफॉर्मेशन है, एक पूरी 3 जनरेशन की जिंदगियों की कहानी है। उसके साथ जो और लोग हमारे साथ कोलैबोरेट किए हैं इसके अंदर, वो सारे इस इंडस्ट्री के महारथी रहे हैं। उनमें से बहुत सारे जो हैं रोशन साहब के को ट्रेलर रहे हैं, जैसे आशा जी। और लेकिन सभी ने जिस तरह से इस कहानी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दी है, इमोशनली एंड इंफॉर्मेटिवली एंड क्रिएटिवली, इट इज़ अनहर्ड। मैं जब आशा जी ने इंटरव्यू दिया, और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने आधा घंटा नॉन स्टॉप विदाउट एनी कट बात किया। 1952 में उन्होंने पहला गाना कौन सा गाया, वो उस वक्त रिकॉर्डिस्ट कौन था, क्या पहना हुआ था, वो गाने को गा के बताया। शी वॉज अमेजिंग। सो you will meet so many amazing people from this cinema, from our Hindi cinema in this documentary, like Javed Sahab. But there are so many people. There are at least, I think, 40 people, Geeta, if I'm not mistaken. Wow. For maybe more. So, yeah, it's a treat for you guys. बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां होने वाले, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। जी। आप प्लीज टेक योर सीट। कौन सा वाला है मेरा? आइए सर, ये यहाँ पे आपका सीट। थैंक यू। ये किसका एक एक्सेंट? Netflix India, can we please have Monica Shergill once again on stage? Thank you, ma'am. Thank you once again for joining me. Now, ladies and gentlemen, it's time जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे. Once again, a very warm welcome to all of you, because it's time to call the Roshan family on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Visionary Director Rakesh Roshan Sahab. भाई उम्मीद करते हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट्री OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो दर्शकों को बेहद पसंद आएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।